It's your English class, and today we are going to study our first poem, The Little Things That Happen. So, dear students, for this you need to advise open the page number. Page number is 14. 14 page number you have to open. The little things that happen. This poem we are going to study today. But before reading or reciting this poem, some part is left which we are going to do first, that is writing part of our previous chapter. Paragraph writing, this part is left. So first of all we are going to do this part, writing part. Dear student, this writing you have to write in your fair notebook of grammar. Once again I tell you, this writing part you have to write in your fair notebook of grammar. Right, let's start writing. Descriptive paragraph, narrative paragraph. Imagine you are just kid going to school. Write a paragraph describing what you see outside. आपने इमेजिन करना है कि आप चस्कित हो और आप स्कूल जा रहे हो और क्या आप बाहर देखते हो, क्योंकि चस्कित जो थी उसने कभी भी वो स्कूल नहीं गई थी, उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी स्कूल जाते हुए। तो जो पहली बार स्कूल गई उसके बाद उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया, तो उसने क्या देखा। You have to write the paragraph regarding this. Okay. Second B part, imagine Abdul comes home and tells his mother how he managed to help Chaskit to go to school. आपने इमेजिन करना है कि आप अब्दुल हो और आप अपने घर वापस आते हो, अपनी मदर को बताते हो कि आपने आज कैसे चस्कित की हेल्प की है स्कूल जाने के लिए। Write what he might have said to his mother in order to describe what the problem was and how they built a bridge for Chaskit. तो आपने अपनी मदर को सारी बातें बतानी है, सब कुछ बताना है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स थी और किस तरह तुमने चस्कित के जाने के लिए उस ब्रिज को बनाया। राइट। हिंट, यूज आई फॉर अब्दुल। आपने आई यूज करना है अब्दुल के लिए, आपने इमेजिन करना है कि आप अब्दुल हो। So before understanding how to write a paragraph, we need to like study about what is paragraph. Okay. So for this, we need to come on this page. Look at here. First of all, let's understand what is paragraph. Paragraph, it is a short piece of writing which usually deals with a single theme. तो एक short piece of writing होता है जिसमें एक ही थीम के बारे में, एक ही टॉपिक के बारे में उसमें लिखा जाता है, एक ही टॉपिक को डिस्क्राइब किया जाता है। Now types of paragraph, there are mainly two types of paragraph. जो mainly paragraph के types होते हैं वो दो तरह के होते हैं। One is narrative paragraph, second is descriptive paragraph. So let's understand what is narrative paragraph and what is descriptive paragraph. Narrative paragraph, in this any incident or event is narrated. Example, the last PTM. Descriptive paragraph, in this we describe any person, place or thing. Example, your school. सो बच्चों हमें ये समझना है कि पैराग्राफ एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होता है जो दो तरह के होते हैं, एक नरेटिव पैराग्राफ, एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। नरेटिव पैराग्राफ में क्या होता है, कोई भी आपके साथ घटना घटी, आपने उसको डिस्क्राइब करना होता है। राइट, कि कब ऐसा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इन दिस वे यू हैव टू डिस्क्राइब। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में क्या होता है, आपने किसी को डिस्क्राइब करना है, किसी इवेंट को डिस्क्राइब नहीं करना, कोई घटना घटी उसको डिस्क्राइब नहीं करना, किसी प्लेस को, पर्सन को, थिंग को, जैसे अपनी स्कूल को डिस्क्राइब करते हो, तो वो क्या हुआ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, कि हमारे स्कूल का नाम ये है, वो वहां पे लोकेटेड है, उसमें इतने रूम्स हैं, वो क्या है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है। नरेटिव में क्या होगा कि सपोज करो कि लास्ट पीटीएम हुई आपकी, लास्ट पीटीएम में कौन आपके क्लास इंचार्ज थे, आपकी मदर, आपके फादर, आप किससे मिले, कितने आपके मार्क्स आए, उसके बाद क्या हुआ जो आपके मार्क्स अच्छे आए। सो दिस इज कॉल्ड नरेटिव पैराग्राफ। राइट, now let's understand some important points. Important points, take only one thing. So whenever we are going to write a paragraph, so we need to remember that always we need to use one thing, means one topic we should use in our paragraph. पैराग्राफ में पहला पॉइंट क्या होता है कि हमें एक ही टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ लिखना होता है। ऐसा नहीं कि एक ही पैराग्राफ में एक से ज्यादा दो, तीन या चार टॉपिक्स हो, नहीं, एक ही के बारे में लिखना। राइट, नेक्स्ट, ऑर्डर। Order should be right. Suppose you are narrating the last PTM. So first of all, what happened? You need to mention first in your paragraph. तो order तुम्हारे पैराग्राफ में ठीक होना चाहिए। जैसे आप कोई अपनी लास्ट पीटीएम या
लास्ट दिवाली पे क्या हुआ, आप वो डिस्क्राइब कर रहे हो, तो उनका ऑर्डर यानी कि जो बातें हैं, जो काम हुआ, उनका ऑर्डर सही होना चाहिए। जो काम पहले हुआ वो पहले मेंशन करना है आपने। Next, first sentence, topic sentence. First sentence is called topic sentence, and by the first sentence, it should be clear what is your topic, what is the theme of your paragraph. तो फर्स्ट सेंटेंस आपका टॉपिक सेंटेंस होता है। फर्स्ट सेंटेंस से ज्यादातर ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आप किसके बारे में आप वो पैराग्राफ लिख रहे हो, राइट। सेकंड, मिड पार्ट शुड बी सपोर्टिंग पार्ट। मिड जो पार्ट होता है पैराग्राफ का, वो सपोर्टिंग पैराग्राफ पार्ट होता है, यानी कि जो आज आप बताना चाहते हो उसमें सपोर्ट करना चाहिए वो सेकंड वाला पार्ट, मिड पार्ट मींस। लास्ट पॉइंट, लास्ट पार्ट शुड बी कंक्लूजन पार्ट। तो लास्ट पार्ट में कंक्लूजन पार्ट होना चाहिए कि अल्टीमेटली आप क्या कहना चाहते हो। इट शुड बी कंक्लूडेड इन दिस, राइट। These points you have to remember while writing a good paragraph. Okay, now let's come back. इमेजिन यू आर चस्कित गोइंग टू स्कूल। आपने इमेजिन करना है कि आप चस्कित हो, स्कूल जा रहे हो। राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग व्हाट यू सी आउटसाइड। आपने जो बाहर देखते हो उसको पैराग्राफ में लिखना है। सो आंसर, वी कैन राइट पैराग्राफ, वी कैन राइट इन दिस वे, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। द गवर्नमेंट स्कूल इन आवर विलेज इज सिचुएटेड बाय द साइड ऑफ ए स्ट्रीम। तो जो गवर्नमेंट स्कूल है हमारे विलेज में एक स्ट्रीम के साइड में, एक नदी के, एक नाले के साइड में सिचुएटेड है। देयर इज अ ब्रांड न्यू ब्रिज टू रीच द स्कूल। उस ब्रिज, उस नदी के ऊपर एक ब्रांड न्यू ब्रिज है स्कूल जाने के लिए। आई फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट। मेरे लिए बिलीव करना बहुत मुश्किल था that it was built for me by the children and the teachers of the school. तो चस्कित यहाँ बोल रही हैं कि मेरे लिए बिलीव करना बहुत ही मुश्किल था कि टीचर्स के द्वारा और स्टूडेंट के द्वारा, स्कूल के जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये ब्रिज मेरे लिए बनाया है। On leaving home, I reached the main road along which all the important buildings are located. So घर छोड़ने के बाद यानी कि घर से निकलने के बाद मैं मेन रोड पर पहुंच गई और वहां पे ही सारी important buildings थी, वहां पे located है। I saw the monastery and took a left turn just before the prayer wheel. तो वहाँ पे एक monastery है, एक मठ है, मैंने उसको देखा और उसके जस्ट बाद ही मैंने, जब प्रेयर व्हील है वहां से लेफ्ट टर्न लिया। Down the slope, there is a stream over which the new wooden bridge stands proudly. तो उस स्लोप के यानी कि ढलान के बाद, एक गली में ढलान के बाद वहां पे एक रिवर है, उसके ऊपर एक ब्रिज है जो वुडन का बना हुआ है, प्राउडली वहां पे खड़ा हुआ है। Across the bridge stands the most beautiful building in the world, my school. और उस ब्रिज के पार कर उस ब्रिज के दूसरी तरफ मेरा, यानी कि दुनिया की सबसे अच्छी बिल्डिंग है, वो क्या है, मेरा स्कूल, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस पैराग्राफ यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक ऑफ ग्रामर, नॉट रीडर। रिमेंबर दिस, फेयर नोटबुक ऑफ ग्रामर, you have to write these paragraphs. Okay, next, narrative paragraph. So question was that, imagine Abdul comes home and tells his mother how he managed to help Chaskit to go to school. Write what he might have said to his mother in order to describe what the problem was and how they built a bridge for Chaskit. So answer we can write in this way. I am very happy today, Ammi. We did what we did few believed was possible. आज मैं बहुत खुश हूँ अम्मी, क्योंकि हमने वो कर दिया जो बहुत कम लोग बिलीव करते हैं कि ऐसा करना पॉसिबल है। There is a little girl who lives on the other side of a stream. एक गर्ल है जो एक दूसरी तरफ रहती है स्ट्रीम की, नदी की। Who was quite sad, जो बिल्कुल उदास थी। She wanted to go to school but could not because her wheelchair could not go over the rough road, not cross the stream. तो वहाँ पे गर्ल है जो बहुत उदास थी, वो स्कूल जाना चाहती थी बट उसकी जो व्हील चेयर है वो उस रफ रोड को, उस स्ट्रीम को पार नहीं कर सकती थी। I spoke to my headmaster. मैंने अपने हेडमास्टर से बात की। He decided to get a road and a bridge built there. उसने डिसाइड किया एक रोड बनाएंगे और एक उसके ऊपर एक ब्रिज बनाएंगे स्ट्रीम के ऊपर।
He talked to the teachers and they, with the help of the students, built a wooden bridge over the river. उस हमारे हेडमास्टर ने टीचर से बात की और बच्चों की सहायता से उन्होंने उस रिवर के ऊपर ब्रिज बना दिया. They made the path smooth for Chaskit wheelchair. तो उन्होंने उस पाथ को भी बिल्कुल स्मूथ कर दिया ताकि जसकित की व्हील चेयर वहां से जा सके. टुडे शी केम टू स्कूल. आज वो स्कूल आई थी. दैट इज व्हाई आई एम सो हैप्पी. एंड इसी रीजन से मैं बहुत आज खुश हूँ. राइट. सो इन दिस वे डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू राइट द पैराग्राफ. Okay, these paragraph we have to write and learn. Now come on our first poem, that is little things that happen. This poem we are going to study. The little things that happen. Marjorie Wilson, the author of this poem, is. Let's read this poem. There are some things that we can never forget. What are some of the things you can never forget? So dear children, हमारी लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको हम कभी नहीं भूलते और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम भूल जाते हैं. Like we play with the sand, we listen the stories from our grandmother, we play with our pet. So many activities we do in our day-to-day life. Some we forget and some we don't forget. So this poem is regarding this. Okay. So first of all, before reciting the poem, we should understand the difficult words of this poem. First word is that tucked. Tucked means hidden, यानी कि कोई चीज छुपी होना. Next, doorways. Doorways means opening into buildings or rooms. यानी किसी room या buildings की जो openings होती हैं जिसको हम दरवाजे बोलते हैं, that is called doorways. Rovers. Rovers things which wander off. Wander off means like ऐसी चीजें जो आवारा घूमती रहती हैं, इधर उधर भटकती रहती हैं, that is called rovers. Okay. Now let's recite the poem. The little things that happen are tucked into our mind and come again to greet you, or most of them you'll find. Through many little doorways of which you keep the keys, they crowd into your thinking, we call them memories. But some of them are rovers and wanders off and get so lost the keys grow rusty, and that means you forget. But some stay ever near you. You'll find they never rover. Their keys are always shining. Those are things you love. Right? Now let's understand this poem. So author in this tells us that the little things that happen are tucked into our mind. जो भी कुछ हमारे साथ होता है हर रोज की लाइफ में, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, जो भी कुछ हमारे साथ होता है, वो सारी बातें हमारे माइंड में जाके कहीं छुप जाती हैं. एंड कम अगेन टू ग्रीट यू. ऑफ मोस्ट ऑफ देम यू विल फाइंड. और उन यादों में से, उन बातों में से बहुत सारी बातें हमें अक्सर याद आती रहती हैं, यानी कि वो बातें हमसे मिलने आती हैं, हमें ग्रीट करती हैं. कुछ बातें हम भूल जाते हैं, कुछ बातें हमें याद रहती हैं, अक्सर उनको याद करते रहते हैं. थ्रू मैनी लिटिल डोरवेज ऑफ विच यू कीप द कीज. तो हमारे बहुत सारे डोरवेज हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जिनकी कीज हम अपने पास रखते हैं. अपने माइंड में बहुत सारी बातें रखते हैं, उनके दरवाजे हैं और उनकी कीज अपने पास रखते हैं. द क्राउड इनटू योर थिंकिंग वी कॉल देम मेमोरीज. और वो सभी घटनाएं, सभी एक्टिविटीज जो हमारे साथ होती हैं, हम उनको, वो हमारी थिंकिंग के अंदर आ जाती हैं और हम उस थिंकिंग को, उन यादों को मेमोरीज बोलते हैं. But some of them are rovers and wander off and get so lost the keys grow rusty, and that means you forget. But जो हमारी यादें होती हैं उसमें से कुछ यादें ऐसी होती हैं जो अंदर ही भटकती रहती हैं, हम उसे कभी याद नहीं करते. उनकी जो कीज होती हैं, उनके दरवाजे होते हैं, उनमें हम की यूज नहीं करते. वो यादें जो होती हैं, बातें होती हैं, हमारे पास कभी वापस नहीं आती, तो हम उन बातों को, यादों को भूल जाते हैं. But some stay ever near you. You'll find they never rove. The keys are always shining. Those are things, the things you love. तो देखो, एक बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अक्सर हमारे पास रहती हैं. हम उन बातों को, उन यादों को, उन एक्टिविटीज को कभी नहीं भूलते और उनको हम अक्सर याद करते रहते हैं. तो उनके डोर खोलते रहते हैं. उनकी कीज जो होती है वो शाइनिंग रहती है. और वो क्या होती हैं? वो ऐसी बातें होती हैं, ऐसी यादें होती हैं जिनको हम लव करते हैं, प्यार करते हैं. राइट. So this is all about this poem. So basically this poem is
and the memories which we forget, and some memories are there we never forget, right? So let's understand the question answer of this poem. Understanding the poem. Choose the right options to answer these questions. कुछ यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके राइट ऑप्शन चूज करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट कम्स टू ग्रीट यू फ्रॉम टाइम टू टाइम. समय समय पर क्या चीज तुम्हें ग्रीट करने आती है, क्या चीज तुम्हें मिलने आती है. ड्रीम्स, ओल्ड थॉट्स और फ्रेंड्स. वी नो दैट व्हाट इज द राइट आंसर. राइट आंसर इज ओल्ड थॉट्स. जो पुरानी यादें होती हैं वो अक्सर हमसे मिलने आती हैं, यानी कि उनको हम याद करते हैं. सो आंसर यू कैन सी दैट ओल्ड थॉट्स. सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डू मेमोरीज स्टे. जो हमारी मेमोरीज होती हैं, यादें होती हैं, वो कहाँ स्टे करती हैं, कहाँ रहती हैं. टक्ड अवे इन योर ड्रीम्स. तुम्हारे ड्रीम्स में जाके छुप जाती हैं. बरीड इन द पास्ट. पास्ट में बरीड हो जाती हैं. हिडन इन योर माइंड. हिडन इन आवर माइंड. अपने माइंड में, हमारे माइंड में छुप जाती हैं. वी नो दैट हिडन इन आवर माइंड इज राइट आंसर. मींस सी ऑप्शन इज राइट. लेट्स सी द आंसर की हिडन इन आवर माइंड. यस, राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चंस. व्हाट कम्स थ्रू द डोरवेज. जो डोरवेज होते हैं, रास्ते होते हैं, उनसे क्या चीज आती है. सो आंसर वी नीड टू राइट हियर इन दिस वे. द मेमोरी ऑफ लिटिल थिंग्स दैट हैपन कम्स थ्रू द डोरवेज. जो मेमोरीज होती हैं, यादें होती हैं, जो हमारे साथ होता है, वो उन डोरवेज में से आती हैं, उन रास्तों में से आती हैं, माइंड के रास्तों में से आती हैं. दिस आंसर you have to write. Next question, what happens when the keys to some doorways get rusty. क्या होता है जब कुछ डोरवेज की, कुछ दरवाजों की रस्टी हो जाती है, जंग लग जाता है उन पे, तो क्या होता है. So answer we can write here, when the keys to doorways get rusty we forget those incidents. जब किसी दरवाजे की डोरवेज की रस्टी हो जाती है, तो हम उस इंसिडेंट को भूल जाते हैं. रस्टी कोई की कब होती है, जब उसको यूज नहीं किया जाता. यूज डोरवेज को नहीं किया जाएगा, डोरवेज को नहीं खोला जाएगा, तो वो चीज बाहर नहीं आएगी, तो हमें याद नहीं आएगी, हम उन्हें भूल जाएंगे, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द मेमोरीज ऑफ थिंग्स यू लव. जिन चीजों को तुम प्यार करते हो, जो चीज तुम्हें अच्छी लगती हैं, जो तुम्हारे साथ हुआ पास्ट में, उनकी मेमोरी के साथ क्या होता है. सो लेट्स सी द आंसर. द मेमोरीज ऑफ थिंग्स वी लव स्टे विद अस फॉरएवर. ऐसी काम, ऐसी बातें जो हम, हमारे साथ पास्ट में हुआ हो, और हमें वो काम, वो बातें अच्छी लगती है, तो वो बातें हमेशा हमारे साथ रहती हैं, क्योंकि बार बार हम उन बातों को याद करते रहते हैं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, Why do some memories always stay with you while others go away? ऐसा क्यों होता है कि कुछ मेमोरीज हमेशा हमारे साथ रहती हैं और कुछ मेमोरीज चली जाती हैं, यानी कुछ मेमोरीज को, कुछ बातों को हम भूल जाते हैं, कुछ को हम कभी नहीं भूलते. सो आंसर वी कैन राइट हियर, memories that stay with us are of the times we received love or some special occasions. तो ऐसी मेमोरीज जिसमें हमें कुछ, हमें अच्छा फील हुआ हो, वो ऐसी मेमोरीज जिसको हम प्यार करते हो, या कोई स्पेशल ओकेजन हो, कोई स्पेशल अवसर हो, तो उन बातों की मेमोरीज जो होती हैं हम कभी नहीं भूलते. आर मेमोरीज जस्ट फेड अवे. और बाकी जो अदर मेमोरीज होती हैं वो हमारी फेड अवे हो जाती हैं, यानी कि गायब हो जाती हैं, हम उनको भूल जाते हैं, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती. Next question, what happens to the memories that rove. What happens to the memories that rove. So dear student, one word is missing here, one word you have to fill here. What happens to the memories that never rove. So never word after that you have to fill. तो इस लाइन में, इस क्वेश्चन में आपने नेवर वर्ड फिल करना है, NEVER. दैट वर्ड के बाद, दैट वर्ड के बाद नेवर वर्ड फिल करना है, NEVER. प्लीज डू इट. सो व्हाट हैपेंस टू अ मेमोरी दैट नेवर रोव. यानी कि ऐसी मेमोरी जो कभी रोव नहीं करती, इधर उधर नहीं भटकती है, तो उस मेमोरी के साथ क्या होता है. सो आंसर वी कैन सी दैट द मेमोरीज दैट स्टे विद अस मेक अस फील लव. ऐसी मेमोरी जो इधर उधर नहीं भटकती, जिसको हमेशा याद रखते हैं, तो उन मेमोरीज के साथ हमें प्यार हो जाता है, उन मेमोरीज को हम अक्सर याद करते रहते हैं, उन मेमोरीज को हम कभी नहीं भूलते. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द मेमोरीज दैट स्टे विद यू हेल्प यू. जो मेमोरीज हमेशा तुम्हारे साथ रहती हैं, वो तुम्हारी किस तरह हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं. सो आंसर वी कैन राइट हियर, द मेमोरीज दैट स्टे विद अस मेक अस हैप्पी बाय रिमाइंडिंग us of the happy times we had.
जो मेमोरी हमेशा हमारे साथ रहती हैं वो हमें अच्छा फील करवाती रहती हैं, ये याद दिलाकर कि पास्ट में कुछ हमारे साथ अच्छा हुआ था, यानी कि पास्ट की कुछ अच्छी बातों को याद करते रहते हैं और हम हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं उन पास्ट की अच्छी बातों को याद कर। तो अच्छी बातों से यानी कि अच्छी मेमोरी से हम खुश रहते हैं। नेक्स्ट, Why are the keys of some memories always shining? कुछ memories की जो keys होती हैं हमेशा shining क्यों रहती हैं? So answer we can write here. The keys of some memories are always shining because we remember them forever. कुछ बातों की जो कीज होती हैं यानी कि हमेशा शाइनिंग रहती हैं, जैसे कोई डोर हम बार बार खोलते रहते हैं तो उस डोर को खोलने की वजह से जो उसकी की होती है वो हमेशा शाइन करती है, रस्ट नहीं लगता, उस पर जर नहीं लगता। उसी तरह जो मेमोरी हम बार बार याद करते रहते हैं वो हमें हमेशा याद रहती है क्योंकि वो अच्छी बातों की होती है। तो उत्तर ने ये उसको सिमुलेट किया है कि उसके साथ उसकी की भी शाइनिंग रहती है, जिस तरह हम कोई डोर खोलते रहते हैं उसकी की शाइनिंग रहती है, राइट। तो अच्छी बातों की मेमोरीज हमेशा, अच्छी बातों की मेमोरीज की जो की होती है हमेशा शाइन करती रहती है, राइट। सो D part discuss in class. This question you have to skip, dear student. This question you do not need to write. This question you have to skip. Okay. Next, appreciation. First A part, pick out the pairs of the rhyming words in the poem. So आपने इस पोएम में से राइमिंग वर्ड्स निकालने हैं। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनका साउंड अप्रोक्सीमेट सेम होता है, जिनका साउंड सिमिलर होता है, उनको हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, राइट। So answer we can see that, like let's see that how many rhyming words are there. Yes, stanza 1, in one stanza mind find, पहले stanza में mind और find दो words हैं। Next stanza keys memories, two rhyming words हैं, keys and memories। Third stanza get forget, get and forget, last sound is approximate same, that is called rhyming sound। So in the fourth stanza rove love, rove love, so last sound is quite little similar, so that's why we can mention them in rhyming words। So this question you also have to do, right? So last question again you have to skip, means B part you have to skip, right? So this is all about this poem। So dear student, once like one very important information I want to give you, from the next class, from the Monday we will do prayer in our first period। हम अपने first period में prayer भी करेंगे, right? I will assign the task to someone, मैं किसी को task दूंगा, that student has to speak गायत्री मंत्र, उस स्टूडेंट को गायत्री मंत्र बोलना होगा। एंड व्हाट आर द रेस्ट ऑफ थिंग्स आई विल लेट यू नो। जो बाकी बातें करनी होंगी हमें प्रेयर में वो जल्दी मैं आपको बता दूंगा, बट एक स्टूडेंट को मैं उसकी ड्यूटी असाइन करूंगा। हर मंडे को, मीन्स हर रोज अलग अलग स्टूडेंट को ड्यूटी असाइन की जाएगी और उनको प्रेयर करनी होगी फर्स्ट पीरियड में। और प्रेयर में आप गायत्री मंत्र बोलोगे। अगर आपको गायत्री मंत्र नहीं आता तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना और उसको देख के बोल लेना, राइट। सो